روزے کی تعریف ہے وہ عمل جس میں کوئی روزہ دار اپنی جان، اپنے جسم اور اپنی روح کی خاطر محدود مدت کے لیے ارادتاً کھانا پینا چھوڑ کر خدا کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جب کوئی روزہ دار اپنے جسم، اپنی روح اور اپنی جان کی خاطر وہ کیا کرتا ہے؟ کچھ مدت کے لیے ارادتاً کھانا پینا کیا کرتا ہے؟ چھوڑتا ہے اور خداوند کی طرف کیا کرتا ہے؟ رجوع لاتا ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ روزہ کہتے ہیں۔ روزہ آپ کے بدن کی قربانی ہے۔ کھانا ہماری کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ کھانا ہماری کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ اور جب ہم سرٹن ٹائم کے لیے کھانا پینا چھوڑتے ہیں اور ہم یہ بات کہتے ہیں کہ میں خداوند کے لیے اس کو چھوڑ رہا ہوں، اس کے مقاصد بہت سے ہو سکتے ہیں، ہم اس کی بات نہیں کر رہے، ہم صرف اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ جب ہم اپنے بدنوں کو خداوند کی طرف لے کر آتے ہیں، اپنی جان کو خداوند کی طرف لے کر آتے ہیں اور ہم اس کی ستائش اور پرستش کے لیے، اس کی قربت کے لیے اپنی زندگی اس کے حضور کیا کرتے ہیں؟ پیش کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے، میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ سیزن کوئی افسوس اور غم کا سیزن نہیں ہے۔ افسوس اور غم کا سیزن بالکل بھی نہیں ہے۔ اب روزہ جو ہے اس کا بائبل مقدس میں ذکر کہاں پر ہوا؟ اور بہت سارے لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ پادری صاحب روزہ کدوں شروع ہونا ہے، کدوں ختم ہونا ہے، کب روزے کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ شروع کرنا ہے اور کب اس کو ختم کرنا ہے۔ بائبل مقدس میں عبار 23 باب اس کی 26 سے 32 آیت، اور یہ خداوند نے انہیں حکم دیا کہ انہیں اسرائیل کو حکم دیا، آپ نکال سکے بائبل مقدس میں عبار کی کتاب، یہ خروج کے بعد آئے گا، عبار اس کا چیپٹر ہے 23 اور ورس 26 to 32، اس کی آیت نمبر ہے 26 سے، اس کی آیت ہے 26 سے 32 تک، 23واں چیپٹر ہے جی پلیز۔ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، اسی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارہ کا دن ہے، اس روز تمہارے مقدس مجمع ہو اور تم اپنی جانوں کو دکھ دینا اور خداوند کے حضور آتشی قربانی گزارنا۔ تم اس دن کسی طرح کا کام نہ کرنا، کیونکہ وہ کفارہ کا دن ہے جس میں خداوند تمہارے خدا کے حضور تمہارے لیے کفارہ دیا جائے گا۔ جو شخص اس دن اپنی جان کو دکھ نہ دے وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا، اور جو شخص اس دن کسی طرح کا کام کرے اسے میں اس کے لوگوں میں سے فنا کر دوں گا۔ تم کسی طرح کا کام مت کرنا، تمہاری سب سکونت گاہوں میں پشت در پشت یہی آئین رہے گا، یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہو، اس میں تم اپنی جانوں کو دکھ دینا۔ تم اس مہینے کی 9ویں تاریخ کی شام سے دوسری شام تک اپنا سبت ماننا۔ آمین۔ جی، ایک شام سے دوسری شام تک، یعنی کہ جب سورج غروب ہوتا ہے اور پھر جب اگلا سورج غروب ہوتا ہے وہاں تک آپ کا جو ہے وہ کیا ہے؟ فاسٹ ہے۔ یہ 24 آور بنتے ہیں، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی اس میں ہم پیسہ کچھ کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے، تو میں تو کہتا ہوں جب فاسٹ ہے تو پھر کچھ کھانا پینا نہیں۔ خداوند کے حکم کے مطابق کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کفارے کے دن، یہی ایک دن خدا نے اسرائیل کے لیے مقرر کیا جب ان کا سالانہ کفارہ دیا جاتا تھا۔ اس دن وہ شام سے اگلی شام تک کوئی کام نہیں کرتے تھے، کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے، وہ اپنے گناہوں خطاؤں کے لیے خداوند کے طالب ہوتے اور خدا کے حضور آتے کہ خدا ان کی خطاؤں کو معاف کرے، اور پھر جو سردار کاہن تھا وہ بھی ان کے لیے برے کے اوپر ہاتھ رکھتا اور اس کو چھوڑ دیتے یوم کفارہ کے دن۔
उस दिन वो आतिशीन कुर्बानियां भी गुजरानते। तो ये लॉ, ये कानून खुदा ने इसराइल को दिया कि वो एक शाम से दूसरी शाम तक पूरा डे, पूरा दिन और रात इसमें आता है। तो बाद औक़ात लोग कहते हैं नहीं भाई साहब सुबह 6 बजे रखा, शामी 6 बजे खोलो, भाई ताड़ी मर्जी है, भावें 2 घंटे का रख लो, खुदा तो तुहानू कुछ नहीं कहता। रोजे की मुद्दत पर खुदा की जो है वो निगाह नहीं है, खुदा की निगाह आपके बातन पर है। आपके अंदर क्या है, आप किस लिए ये काम कर रहे हैं, मकसद इसके पीछे क्या है, मोटिवेशन इसके पीछे क्या है, तहरीक इसके पीछे क्या है, मकसद क्या है। खुदा की निगाह उस पर है। खुदा ज़ाहिर पर निगाह नहीं करता, खुदा बातन पर क्या करता है, निगाह करता है। सो इसराइल के लोग जो थे वो यौमे कफारा के दिन, एक दिन पूरा साल में वो क्या करते थे, मुकम्मल तौर से रोजा रखते थे, ना वो खाते थे ना वो पीते थे। और यहाँ पर लिखा है, अगर आपने इसको सुना है, जब यूशिया ने पढ़ा तो लिखा है, और जो शख्स उस दिन किसी तरह का काम करे उसे मैं उसके लोगों में से फना कर दूंगा। ये खास खुदा ने उन्हें हदायत भी दी कि जब कफारा का दिन है तो उस दिन ये होगा। लेकिन आपके लिए खुशी की खबर ये है कि आपका हमेशा के लिए कफारा अदा किया जा चुका है। हालेलुया, आपका कफारा हमेशा के लिए। हालेलुया, खुश हैं? यीशु मसीह के लिए तालियां बजा सकते हैं और हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। जब आप उसके पास आ जाए, जब उससे कहे खुदावन मेरी खताओं को बख्श दे, और कहता जा सारियां तो दित्तियां, वॉश आउट कर देता, तेनू बिल्कुल क्लीन कर देता, साफ कर। सिर्फ एक दिन नहीं, मसीह की कुर्बानी के बाद, कफारे के बाद कोई भी टाइम आप खुदावन के पास आए कि खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तूने मेरा फिदिया दिया है, तूने मेरा कफारा दिया है, मैं ईमान लाता हूँ कि तूने मेरे लिए लहू बहाया है, मेरे गुनाहों को माफ कर दे। आपके गुनाह क्या हो जाएंगे? माफ हो जाएंगे। सो इसराइल के लोग एक दिन, साल में एक दिन, फिर हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में जरूरत के तहत रोजे रखते थे लोग, और जो ईमानदार लोग होते थे वो इसकी प्रैक्टिस जो थे वो करते रहते। फरीसी जो थे, जो खुदा के साथ चलते थे, वो हफ्ते में 2 रोजे रखते थे, सोमवार वाले दिन और जुमेरात वाले दिन, 2 उनके फास्ट होते थे। और जब यीशु मसीह ने कहा जब तुम रोजा रखो तो अपनी सूरत दास बनाओ, उन्होंने ये इसको एक बड़ा भार समझ लिया और वो इसको ऐसे ही लेते थे। अब ये हम पर क्या कर दिया गया है, फर्ज कर दिया गया है कि हमने 2 रोजे रखने, इसलिए यीशु मसीह ने उन्हें कहा जब तुम रोजा रखो तो अपनी सूरत दास। तो ये रोजा जो है ये हमारा स्पिरिचुअल डिसिप्लिन भी है कि हम जो है खुदावंद के हुजूर आते हैं, हम रोजा रखते हैं, अपनी जिंदगी खुदा के हुजूर पेश करते हैं, खुदा से कहते हैं कि खुदा हमें क्या करे, मुआफ करे, या खुदा की कुर्बत हमें मिले, या खुदा जो हमारी जिंदगी में करना चाहता है वो खुदा हमारी जिंदगी में करता चला जाए। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर आज हम थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं इसको पूरे। हम इस सीजन में, अब मुझे कहा गया है कि रोजे के बारे में, तो मैंने कहा जरा तफसील से बात करेंगे। तो आज सिर्फ मैं आपको इसका इंट्रो ही दे रहा हूं कि रोजा जो है ये हमें खुदा की कुर्बत बख्शता है। बाज़ औक़ात लोग रोजे रखते हैं, उनके अपने मकासद होते हैं, कोई ताकत मिल जाए, कोई पावर मिल जाए, ऐसे मकासद से रोजा न रखें। रोजा खुदा की कुर्बत हासिल करने के लिए रखें। जब खुदा मिल जाए तो सब कुछ मिल जाता है, सारियां पावरा मिल जाती है तो खुदा मिल जाए, तो खुदा ना मिले तो पावरा भी काम कोई नहीं कर दिया। तो रोजे हम इसलिए रखें कि हमें खुदा की क्या मिले, कुर्बत मिले, नजदीकी मिले, हम खुदावन को और गहरे में जान सके और डीपली खुदा को जान सके। बाइबल मुकद्दस में मुख्तलिफ टाइम में जो है वो रोजे रखे गए हैं। ये अपनी जान को दुख देने के लिए कुछ हवाले मौजूद है मेरे पास, लेके बाद में आप इसकी पिक्चर ले सकते हैं, आप जाके इसको स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। शाम से शाम तक रोजा, अभी हमने इसको देखा
जब आप रोजा रखें तो फिर 24 घंटे का रखें, ये मेरी सजेशन यही है। अगर मुझसे कोई अप्रूवल ले पादरी साहब रोजा कितना रखना तो मैं कहना 24 घंटे का रखना, फिर जो रखना है तो फिर केड़ा रखना है 24 घंटे, इन टर्म नहीं रखना। कुछ लोग चले कोई बीमार हैं, कुछ उनके हैं, उनके दिल में है रोजा रखे तो वो थोड़ी ड्यूरेशन का भी रख सकते हैं, लेकिन मकसद क्या है? खुदा की गुर्बत, खुदा की नजदीकी, खुदा के करीब आना, खुदा को जानना, खुदा को डीपली अपनी जिंदगी में ले लेना, ये इसका मकसद होना चाहिए। सो बनी इस्राइल ने एक रोजा और रखा, और ये दाऊद ने रखा, और ये सुबह से शाम तक था। ये रोजा उसने कब रखा? जब उसने ये सुना और उसको इत्तला दी गई कि साउल और यूनातन क्या हो गए हैं, मार दिए गए हैं, कत्ल कर दिए गए हैं। उसने अपने कपड़े फाड़े और सभी ने अपने कपड़े फाड़े और वो रोए और वो मातम करने लगे, और लिखा है सुबह से शाम तक उन्होंने कुछ भी ना खाया। तो एक रोजा इसका भी जिक्र है। इसका जिक्र दूसरे शमूएल उसके पहले बाब उसकी 12वीं आयत में है। इसके बाद एक और रोजा कलाम मुकद्दस में 3 दिन का रोजा आस्तर के टाइम में, और ये टाइम कौन सा था? जब अक्विरिस बादशाह ने इस्राएलियों को किसका हुक्म दे दिया था? उनको जहां जहां है उनको क्या कर दिया जाए? कत्ल कर दिया जाए। और ये हुक्म उसने हमान एक उसका ऑफिशियल था, उसकी सारी जो थी वो क्या कहना चाहिए, साजिश से उसने इसको प्रूव किया। लेकिन मर्द की खुदा से मोहब्बत करने वाला था, और आस्तर उसकी भतीजी या बहन थी, और उसने आस्तर से कहा कि मार तो सभी जाएंगे एक दिन, लेकिन इसको क्या किया जाएगा? याद रखा जाए। और आस्तर ने उससे कहा कि 3 दिन के लिए जहां जहां यहूदी हैं उनको कहो रोजा रखे, और मैं भी रोजा रखती हूँ, फिर मैं बादशाह के हुजूर जाऊंगी, अगर मेरी जान बची तो बची। तो आस्तर ने एक रोजा 3 दिन का रोजा, और मकसद क्या था? खुदा इस्राएल के लोगों पर क्या करे? रहम करे। खुदा यहूदियों पर क्या करे? रहम करे। और ये बता दिया गया था कि ये दिन है, इस दिन यहूदियों को क्या कर दिया जाए? कत्ल कर दिया जाए, मार दिया जाए, जहां जहां मौजूद हैं इनका सामान, इनकी चीजें लूट ली जाए, इनके बूढ़े बच्चे जवान औरतें सबको क्या कर दिया जाए? कत्ल कर दिया जाए। लेकिन आस्तर खुदा के हुजूर आई, मर्दकी ने उसे जो है वो क्या दी? इंस्पायरेशन दी कि तू ये काम कर सकती है, और आस्तर इस काम करने से पहले खुदावंद के हुजूर आई। 3 दिन उसने रोजा रखा, और इस्राएल के लोगों ने, यहूदियों ने, जहां जहां वो मौजूद थे, उन्होंने 3 दिन रोजा रखा, और ये बलाए अजीम उनसे टल गई। हालेलुया। खुदा रोजों के जवाब भी देता है, दुआओं के जवाब भी देता है। कलाम मुकद्दस में खुदा यीशु मसीह ने कहा कि इसका अजर खुदा जो पशीदगी में देखता है, खुदा इसका अजर देगा। इसके अजर पे भी बात करेंगे, क्या अजर मिलता है, लेकिन आगे जाकर यहाँ पर हमें अजर ये मिलता है आस्तर के टाइम में कि खुदा ने तमाम यहूदियों को जान उनकी क्या कर दी? बचा दी। वो रेस्टोर हो गए, बहाल हो गए, बच गए, सरफराज हो गए। खुदा सरफराजी भी बख्शता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि पर्सनल जो हमारे पर्पसेस हैं उससे ज्यादा हमारे जो तमाम लोगों का जो एक पर्पस है उसके लिए मिलकर जब खुदा के हुजूर आए रोजों में और दुआओं में, तो खुदा जो है वो जलाली काम करता है। इसके बाद हमें मिलता है दाऊद का 7 दिन का रोजा। वो कौन सा था? ये बड़ा मशहूर रोजा। जब नातन नबी ने उसे कहा, क्या कहा? जब उसने बैतशबा और अत्यूरिया के बारे में उसे झिड़का, कहा, और फिर जो उसका बेटा बैतशबा से पैदा हुआ था वो बीमार हो गया, और खुदावन ने कहा नहीं बचेगा। उसने रोजा रखा कि खुदावन तू इसे क्या कर, लेकिन 7 दिन वो भूखा रहा, फिर वो बच्चा मर गया, फिर वो उठा और उसने खाया और पिया। सो दाऊद एक पर्सनल रीजन के साथ खुदा के हुजूर आया कि मेरे बच्चे को क्या कर दे? बख्श दे, उसकी जान को मुआफ कर दे। नातन ने पहले ही कर दिया था, खुदा ने तेरा गुनाह बख्श दिया है, लेकिन ये सजा तुझे मिलेगी, ये लड़का जो है वो जिंदा नहीं है।
लेकिन दाऊद उसके लिए भी खुदा के हुजूर आया रोजे के लिए, लेकिन वो बच्चा जो है वो मर गया। तो ये 7 दिन का रोजे का भी बाइबल मुकद्दस में जिक्र है, 3 दिन का जिक्र है, डैनियल के रोजे का भी जिक्र है। वो कितने दिन का था? 21 डेज का, 21 दिन। और वो क्या, वो 21 दिन, और वो क्या था कि वो खुदा का इंतजार कर रहा था, खुदा के जवाब का। समटाइम आपको खुदा के जवाब का इंतजार है तो आप क्या कर सकते हैं? रोजा रख सकते हैं, खुदा का जवाब भी मिलता है। जब उस राज को जानने के लिए डैनियल दुआ कर रहा था और खुदा ने किसको भेजा जवाब देकर? जिब्राइल को। और कलाम मुकद्दस में फारस के मोक्कल ने उसे रोके रखा, फारस के मोक्कल ने उसे रोके रखा। किसको रोके रखा? जिब्राइल को। फिर डैनियल दुआ करता रहा और एक दिन ये हुआ कि खुदा ने फिर किसको भेजा? मीकाईल को भेजा। उसने फारस के मोक्कल को शिकस्त दी और जिब्राइल पैगाम लेकर डैनियल के पास आया। समटाइम आपकी बरकत रुकी होती है, आपको दुआएं करने की जरूरत है, आपको दुआएं करने की क्या है? जरूरत है। हालेलुया, इधर ही है। हालेलुया। तो रोजे भावे रखो तो भावे ना रखो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन सुनना जरूरी है, ठीक है? ये आपकी मर्जी है, ये आपका खुदा का तल्लक है। और मैं चाहूंगा कि जुमे वाले दिन हम जरूर फास्ट में हों, और ये खास दिन होगा चर्च में दुआ के लिए। हम शाम को 5 बजे दुआ के लिए भी जमा होंगे। अगर ज्यादा लोग आ सके उस डे में, फ्राइडे वाले दिन 5 बजे हम खुदा की वर्शिप भी करेंगे और दुआ भी मिलकर करेंगे, और जो मकासद होंगे वो भी खुदा क्या करेगा? पूरे करेगा। फिर 40 दिन के रोजे का जिक्र आता है, मूसा के रोजे का जिक्र है। ये खरूज 34 बाब में उसकी 28 आयत है, और इस्तिश्ना 9 की 9 ये मूसा उन्हें दोबारा से याद दिलाता है इस्तिश्ना। फिर एलिया का 40 दिन का रोजा है कि खुदा के फरिश्ते ने उसे खाना दिया, उसने कहा जा पूरब की तरफ जा, और 40 दिन वो सफर करता रहा और उसे भूख ना लगी। याद रखिए ये जो एलिया का था, ये फ्रॉम गॉड, खुदा की तरफ से। मूसा भी क्या गया? खुदा की तरफ से। और जब वो 40 दिन वो रहा, खुदा ने उसे क्या दिए? 10 अहकाम दिए, खुदा ने शरीयत दी, खुदा ने बताया मेरे आइन क्या है, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं कैसे चाहता हूं कि कैसे आप जिंदगी बसर करें, कैसे प्रस्तिश करें, कैसे आपका बुद्धो बाशो। खुदा ने मूसा को ये बातें बताई। और फिर एलिया का, और एलिया इस 40 दिन के बाद खुदा का उसके साथ इनकाउंटर होता है, वो खुदा की आवाज को सुनता है। उसके बाद वो 3 लोगों को लेता है, खुदा उसे बताता है एलिया को ले ले, तेरी जगह नबी हो, हजाएल को ले ले, वो असूर का बादशाह हो, और याहू को ले ले, वो इस्राएल का बादशाह होगा। सो खुदा अपने मकसद भी जाहिर करता है, और लोग खुदा के मकसद को इंप्लीमेंट होने के लिए भी क्या करते हैं? फास्टिंग करते हैं, रोजे रखते हैं। ये सबसे अच्छा रोजा होगा कि हम खुदा के मकसद को इंप्लीमेंट होने के लिए हम खुदा के हुजूर आ सके, और हम बड़ी शिद्दत से दुआएं कर सके, दिलसोजी से दुआएं कर सके, और खुदा रहम फरमाए और अपने मकसद को हमारी जिंदगियों में और लोगों की जिंदगियों में क्या करे? पूरा करे। फिर मत्ती की अंजील में मसीह के रोजे का जिक्र आता है। 40 दिन उसने क्या किया? 40 दिन। और उसके बाद खुदा यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज किया, और एक भरपूर खिदमत जिसमें कुदरत, जलाल सब कुछ शामिल था। जो वो कहता था वो होना शुरू हो जाता था। हालेलुया। तो हमारी जिंदगी में ये स्पिरिचुअल डिसिप्लिन भी होना चाहिए कि हम वीकली 1-2, समटाइम आपकी सेहत अच्छी नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन वीकली 1-2 फास्ट जो है हमें करने चाहिए। हमें रोजा रखना मना नहीं किया गया। यीशु ने कहा जब तू रोजा रखे, जब का मतलब है कभी भी, भावे हफ्ते के 7 दिन रख ले, भावे 40 दिन रखे, भावे सारा साल ही रोजे रखे, जब तू रोजा रखे, जब तेरा दिल करे रोजा रखे, अपनी सूरत दास ना बना। उसने बताया कि ये करना है खुशी से, सूरत दास ना हो,
बाहर ना समझा जाए, इसको हम पे थोप दिया गया ये ना समझा जाए। खुशी से खुदा के मकसद को पूरा करने के लिए आज जब मैं देखता हूं तो हमें कोई कलेक्टिव जो मकसद होता है सबका, एक उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं, हमारे छोटे छोटे अपने जाती मकसद होते हैं। तो रोजों का जो बाइबल में मोस्ट जो जिक्र है और जिसमें खुदा ने बड़ा काम किया है वो है कि हम सबके लिए मिलकर रहें। अगर पाकिस्तान में हम अपनी क्रिश्चियनिटी के हालात देखें तो इसके लिए तो हमें रोजे बड़े रखने चाहिए कि खुदा रहम फरमाए, अपना फजल करे, लोगों को रहाई बख्शे, जो मुख्तलिफ अब्यूज हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं, मुख्तलिफ लोगों के शिकार हो जाते हैं, बाज़ औक़ात मसीह की खातिर इसलिए कि वो क्रिश्चियन है तो उनको मार दिया जाता है। तो इसके लिए भी हमें रोजे रखने की जरूरत है, खुदा के हुज़ूर आने की जरूरत है कि खुदा हमारे लोगों पर रहम करे। खास बात जो आज सीखने की है वो ये है, खुदा रोजादार की मुद्दत को नहीं, आप कितनी मुद्दत का रखें, मुद्दत उसके हुज़ूर नहीं, उसकी निगाह किस पर है, बातन पर। उसकी निगाह किस पर है, उसकी निगाह किस पर है, ऊंची बात में बहनें बोले, उसकी निगाह किस पर है, उसकी निगाह किस पर है, बातन पर। खुदा आपकी जहरी भूख को इतना जो है वो नहीं अपने सामने रखेगा, आपके दिल और आपकी जो अंदर बातन और उसके पीछे जो तहरीक है या मोटिवेशन है, खुदा के नज़दीक वो ज़्यादा जो है वो अहमियत की हामिल है। भूख अहमियत की हामिल नहीं है, आपकी जो नीयत है, आपकी जो मोटिवेशन है, जो आपके बातन में है, जो आप चाह रहे हैं खुदा करे, खुदा के लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि हमारा भूखा रहना इम्पोर्टेंट है। फिर भी हमें रोज़ा ज़रूर जो है वो रखना चाहिए, रोज़ा ज़रूर। यीशु मसीह से सवाल किया, यूहन्ना के शागिर्द रोज़ा रखते हैं, फरीसी रखते हैं, दूसरे रखते हैं। यीशु मसीह ने कहा अभी दूल्हा साथ है तो क्या दूल्हे के होते हुए बराती रोज़ा रख सकते हैं, नहीं रख सकते। लेकिन वो कहता है जब दूल्हा जदा किया जाएगा तो फिर ये रोज़ा रखेंगे। और हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में कि उसके शागिर्द रोज़ा रखते थे, और हम भी मसीह के शागिर्द हैं। हालेलुया। कितने लोग कहते हैं मसीह के शागिर्द, कितने लोग मसीह के शागिर्द हैं। फिर हमारी लाइफ में ये रोज़ा का जी ये काम भी जो है वो हमें करना है। दुआओं और रोज़ों में खुदा की कुर्बत मिलती है। दुआओं और रोज़ों में क्या मिलती है, दुआओं और रोज़ों में क्या मिलती है, खुदा की कुर्बत मिलती है, खुदा की नज़दीकी मिलती है, खुदा आपके साथ बोलता है, खुदा अपने मकसद को आपके लिए ज़ाहिर फरमाता है। सो गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे। नेक्स्ट हम कुछ और इसके बारे में सीखेंगे।